السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ اس سیمینار کے آغاز کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو انویٹیشن میں پہلے ہی مطلع کیا گیا ہے، آغاز سیمینار کلام مجید کی تلاوت سے ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید عبدالستار صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين غير ممنون فما يكذب أليس الله بحاكم الله العظيم الكريم۔ ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے کہ وہ بھی شہنشین پر تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترمہ سارہ میتھیو صاحبہ سے کہ وہ بھی شہنشین پر تشریف لے آئیں۔ محترم علی خان محمود آباد سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لے آئیں۔ میں جناب شاہ نواز علی مرزا صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لے آئیں۔ کچھ دیر میں تشریف لا رہے ہیں، میں آنے کے بعد مجھے بھی شہنشین پر گزارش کر کے بلوا لوں گا۔ آئیے حضرات، آپ حضرات آج کے موضوع سے واقف ہیں۔ موضوع یہ ہے نہج البلاغہ اور اصلاح معاشرہ، سوشل ریفارم۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ شہنشین پر تشریف فرما مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات اور وہ تمام پرستاران مولائے کائنات اور نہج البلاغہ جو ہم کو دور دراز مقامات سے اس چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں،
ان کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس سیمینار میں ان کی سماعت اور حاضرین کی حاضری کا خیر مقدم کرتا ہوں. Alhamdulillah, the society which was established in 1970 by Aqai Hussain Zabit and جناب ناصر حسین صاحب اور اس کے بعد پروفیسر حسن عسکری, دین مصطفیٰ حسین صاحب, ڈاکٹر شمشاد حسین, جناب کرار کاظمی, جناب کرنل زیدی, ان بزرگ ترین ہستیوں کے بعد یہ ذمہ داری 2015 میں میرے کندھوں پر آئی ہے. اینڈ since then we have been trying our best to propagate the message of Imam Ali through various seminars, lectures and conferences. نہج البلاغہ امام علی کا وہ مجموعہ ہے جسے علامہ سید رضی نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کمپائل کیا تھا. نہج البلاغہ علوم کا وہ سرمایہ ہے جس کی اہمیت اور عظمت ہر دور میں مسلم رہی. یہ صرف ادبی شاہکار نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہی صحیفہ، حکمت و اخلاق کا سر چشمہ اور حقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے جن کے گواہر آبدار علم و ادب کے دامن کو اپنی چمک دمک سے جوہر شناسوں کو محو حیرت کیے ہوئے ہے. افصح العرب کی آغوش میں پلنے والے، آب وحی میں دھلی ہوئی زبان چوس کر پروان چڑھنے والے، ایسے بلاغت کلام کا وہ جوہر دکھایا کہ ہر طرف سے آواز آئی کہ فوق الکلام المخلوق تحت الکلام الخالق. لیکن ہم نہیں ہو سکے. تب میری پیدائش 15 اگست کو ہے اور کہیں جھنڈا چڑھانے جاتے تھے تو لوگ ملتے ملاقات کہہ سکتا ہوں. واٹس ایپ آ جانے کے بعد کیک کاٹنے کے مسئلے آنے لگے. گویا ہم آپ کے ساتھ خوشی میں شریک ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں. رکھتا ہوں. یقینی طور پر ہمارے درمیان بہت سے مقررین حضرات ہیں. محترمہ سارہ میتھیوز تشریف فرما ہے. یہ آپ کو آج کے موضوع کے مختلف زاویوں سے مخاطب کریں گے. خدا حافظ. فی امان اللہ. محترم اس سے پہلے کہ میں نظم نہج البلاغہ پر پیش کروں، ایک خطا پیش کروں کہ جس میں ہو حق ادا وہ قصیدہ نہ ہو سکا. جس میں ہو حق ادا وہ قصیدہ نہ ہو سکا، اس بحر بے قرار کا احاطہ نہ ہو سکا. اس بحر بے قرار کا احاطہ نہ ہو سکا. صدیوں سے ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے ثنائے علی، مگر مولا کی ایک ادا کا خلاصہ نہ ہو سکا. صدیوں سے ہو رہی ہے ثنائے علی، مگر مولا کی ایک ادا کا خلاصہ نہ ہو سکا. میں پیش کر رہا ہوں سر چشمہ علوم و ہنر نہج بلاغہ، مبدائے حق بلیغ نظر نہج بلاغہ.
सरमाए शऊर बशर नहज बलागा रोशन चराग राह गुजर नहज बलागा। इसकी जिया से राह हिदायत लिया करो, खुदा के साथ साथ इसे भी पढ़ा करो। इसकी जिया से आयात हक की रौक कलमे मुर्तजा में है, जो बात इसमें है वो कलाम खुदा में है। जो बात इसमें है वो कलाम खुदा में है। और समझेगा जो भी नहज बलागा को हू बहू, खुद कह उठेगा ये तो है कुरान की जुस्तजू। इसको खुलूस से दिल से जो अपनाएगी उम्मत, गुमराहियों से आज भी बचाएगी। दानिश्वरों में रहती है यह सबसे मुकद्दम। इस हैदर अब मुल्कों को है पयाम फतेह माली के अश्तर। अल-क़िस्सा ये कलाम है तौक़ीर जिंदगी, गोया कि ये अज़्मे वली फ़िक़ा से जिंदा है इनक़िलाब। कौन आए दीन हक के उसूलों के सामने, और सुपर पावर है ढेर गुलामों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शानशीन तशरीफ फरमा सकरीन अहबाब दानिश और मेरे मुहतरम सामईन, हजरत अली के बारे में आज के दौर में गुफ्तगू करना इसलिए कुछ मुश्किल हो जाता है क्योंकि अली परवरदे वही थे, वही के दामन में बड़े हुए। 10 साल का सिन था जब रसूल मबूस हुए। 5 साल के सिन से रसूल के घर पर रहते थे। जिंदगी वही की हालत में गुजरी। वही जो आखिरी किताब की वही थी, उसके बाद कोई किताब ना आने वाली थी, ना कोई नबी आने वाला था। ये सब खुसूसियतें बनी अली की शख्सियत में, तवज्जो कम होता है। ये सब खुसूसियतें बनी अली की जिंदगी में। आखिरी वही जब आई और उसके बाद वही का सिलसिला खत्म होने वाला था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वही जैसी चीज बंद हो रही है, जो इब्तिदा से थी, इब्तिदा से रही और आते आते खत्म होने वाली है, तो इंसानियत को किस तरह फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। बगैर वही के इंसानियत को आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी रसूल चले जाएंगे, किताब तमाम हो जाएगी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद के साथ, तो क्या देर ऐसी चीज जा रही है कि जो अली की मिराज बने। तो किताब ने 2 चीजें दी। एक तो ये बतलाया कि तुम्हारी फितरत में अल्लाह है, तुम अल्लाह से भाग सकते हो, अल्लाह तुमसे जुदा नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम खुद हैं, क्योंकि मादी तौर पर हमको बिल्कुल हर चीज आसानी से फराहम हो रही है और पेट भर जाने के बाद एंटरटेनमेंट का लेवल कुछ नहीं तो कुछ नहीं फोन के जरिए से मिल रहा है। तो ऐसी आसान जिंदगी में खुदा का फकत हम ज़बानी शुक्र अगर कर दें और उसके अच्छे बंदों की तारीफ कर दें, तो इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। नाइंसाफियों के खिलाफ बेइंतहा जुर्रतमंदाना अंदाज में आगे बढ़ती हैं और हुकूमतों को ये याद दिलाती हैं कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। जालिम तबके के खिलाफ हमेशा उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, मजलूमों का उन्होंने हमेशा साथ दिया। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा सारा मैथ्यू साहबा से वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। Nahj al-Balagha, there are so many times he's so angry and so sad. Many times he's so sad and angry. And why is he so sad and angry? Because he finds
that those who are in the wrong, those who are supporting the wrong, are in huge numbers and they are organized. And those who are his followers are not, they retreat. They get scared by those numbers. They are not able to hold together. And he says this, when Ubaidullah ibn Abbas, governor of Yemen, he came to Hazrat Ali after retreating in a war. Hazrat Ali said, those people will snatch away the whole country through unity on their wrong and your disunity and separation. This is a very big message for all of us. Majority में बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये मेरा family है, मेरा risk मामला है ये, why should I take on पंगा with the government, all that they talk. तो गिने चुने 5-10 लोग होंगे जो वो actually stand up. अब वो 5-10 लोगों में भी यूनिटी होना चाहिए. एंड ये देखिए, हमेशा जो भी जुल्म करते हैं सबको डराते हैं और इसलिए उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं. देयर आर मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. ये भी सोशल रिफॉर्म है. आप किसके साथ मिलजुल रहे हो? योर सोशल रिफॉर्म कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम द वे यू टॉक, द पीपल यू मूव अराउंड विथ. किसी को गिरा रहे हो, कोई फायदा है? किसी को गिरा के नहीं. कुछ कर सकते हो. हाउ कैन वी बिल्ड अप ईच अदर? So, and do we do anything for each other? So, much as we have the responsibility towards society, we have to. अगले मुखर्रिर को आवाज़ दूँ. आप हज़रात की खिदमत में एक छोटी सी इत्तला देनी है. वो ये है कि बाहर काउंटर पर 2 किताबें हैं. एक है अर्श बलागत और एक किताब है अर्श बलागत और नहजुल बलागा, अंग्रेज़ी में है. आप अगर चाहें आप हज़रात तो उस किताब को खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अब मैं मोहतरम अली ख़ान साहब को बुलाने से कबल बहुत ही मुख्तसर सा उनका तारुफ आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहूँगा. और वो ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग फ़र्द वाहिद की सरपरस्ती करते हैं. किसी एक लड़के की या लड़की की उसकी तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर लेते हैं और उसको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर देते हैं. लेकिन मोहतरम अली ख़ान साहब जिस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, वो ऐसा ख़ानदान है जिसने कौम की सियासी, समाजी और तालीमी सरपरस्ती की है और आज भी कर रहे हैं. ऐसे नहीं है कि माजी में किया. ये ना ही तो ये मेरी नज़र में ये ना ही तो तारुफ के मोहताज हैं, ना ही तो इनका ख़ानदान तारुफ का मोहताज है. ये महाराजा महमूदाबाद के पोते हैं. इनके मुतालिक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इन्होंने जो है currently he teaches political science and history at Ashoka University, Haryana, and was head of the political science department between 2022 to 2025. He received his MPhil and PhD from the University of Cambridge, and before this he studied Arabic at the University of Damascus. सबसे तारुफ के बाद मैं आप हज़रात की खिदमत में मोहतरम मोहम्मद आमिर अहमद खान अल-मारूफ डॉक्टर अली खान महमूदाबाद से हर्फ इल्तिमास पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नहजुल बलागा और समाजी इस्लाह माशरा के उन्वान से हमें अपनी तकरीर. तो अपने दिल में रहमत पैदा करो. और यहाँ एक छोटी सी बात है और वही है कि कभी कभी प्रोफेसर है वो बाहर आ जाता है क्योंकि यहाँ लफ्ज़ रहमान और रहीम का आप लोगों ने कभी इस पर गौर फिक्र किया है कि इसका अरबी में मज़दर क्या है? रहम, रे बड़ी है मीम, अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? हम लोग रोज़ कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हर चीज़ आपने कहा कितनी दफ़े आज कहा होगा, आए यहाँ आप बैठे होंगे कुछ किया होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इतनी आसानी से अल्लाह के नाम में शुरू करते हैं जो रहमान रहीम. और उसका तर्जुमा जब कोई अंग्रेजी में करता है तो कंपैशनेट एंड मर्सीफुल. उसमें तो अरबी वो ज़बान है कि उसमें अगर लुग़त अल-अरबी कल बहर, एक समंदर की तरह है.
رحم کہتے ہیں ماں کی کوکھ. اب اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں جوڑوں باتوں کو، لیکن اذان عالیہ آپ لوگوں کے پہنچ گئے ہوں گے کہ ایک اور آروپ لگتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ بنیادی طور پر، عملی طور پر ہمارے سماج میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو متضاد ہیں. حقوق النساء ہے، اللہ کی وہ صفات بار بار دہراتے ہیں، ہم روز دہراتے ہیں، جس کی مصدر اور جس کی لغوی معنی اگر نکالے جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ماں کے کوکھ، اس سے محفوظ اور اس سے بہتر کوئی مقام ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. اور وہ صفت اللہ کی بیان کی جا رہی ہے. دیکھیے اللہ کا کوئی ظاہر جنس نہیں ہے، نہ وہ he has no gender, he is not masculine, he is not feminine. شکر گزار ہوں نہج البلاغہ سوسائٹی کا اور آپ حضرات کا، حیدرآباد کے افراد کا، کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا، کیونکہ پچھلے سال مئی سے لے کے اور اب تک کہ میں بالکل خلوت میں تھا، بالکل کہیں نہیں گیا. تقریروں لوگوں نے بلایا یونیورسٹیز میں اور دیگر جگہ، اور پھر عنوان ایسا تھا اور مولا علی کی شخصیت تھی. تو یہ پہلی دفعہ میں زبان کھول رہا ہوں. یقیناً آپ یقین جانیں کہ مجمع میں 3 لوگوں سے زیادہ کے مجمع میں نے بات نہیں کی ہے 10 منٹ. 3 لوگوں کے سامنے سے زیادہ. بڑا حضرت علی کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں جناب. حضرت علی نے تو اسی نہج البلاغہ میں کہا کہ دنیا کی طرف مت بھاگو بلکہ فخر کرو، کیونکہ حق کی راہ پر چلنے والی جماعت ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے. اکثریت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، سربکف رہتے ہیں اس راہ کے چلنے والے. یہ جذبہ ہے. نہج البلاغہ جو ایک سمندر ہے، اس کو آپ پڑھیں، قرآن کے ساتھ پڑھیں. قرآن تھیوری ہے، تھوڑا سا پریکٹیکل نہج البلاغہ بتا. اگر آپ کو توحید کی اہمیت، نبوت کی اہمیت، امامت کی اہمیت، جہاد کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، شہادت کی اہمیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت، صوم کی اہمیت، صلاۃ کی اہمیت، یہ سب سمجھنا ہے تو آپ کربلا کی طرف آئیے اور آپ سمجھیے وہ تدریج ہے اور وہ منازل ہے جہاں لمحے لمحے پر آخر میں توحید کا مکمل درس ہے. کربلا توحید کا درس ہے. اور دوسرا نہج البلاغہ، کیونکہ اگر ہم کو ایک سماج ایسا بنانا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو جو تھیوری ہے قرآن کی اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور جو چینج ہے، جو ریفارم ہے، وہ خود ہم میں جب شروع ہوگا تبھی جو ہے ہم سماج کو بدل پائیں گے. حضور کی ایک حدیث ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں. من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ حیدری، نعرہ صدری، نعرہ حیدری. اپنی بصیرت افروز گفتگو، خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں اس بات کو دعوے سے آپ حضرات کی جانب سے محترم کی خدمت میں نعرہ حیدری.
ऑल इंडिया नहजुल बलागा सोसाइटी जो 1970 में फॉर्म हुई है, उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसिल इस बात की कोशिश की जाती है कि नहजुल बलागा के ज़रिए लोगों में मौलाए कायनात के पैगाम को आम किया जाए। दैट इज़ द रीज़न कि जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर वगैरह, तो इसमें किसी फ़िरक़ा या मज़हब को पर्टिकुलरली इनवाइट नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़े के स्कॉलर्स को इनवाइट करने की कोशिश की जाती है और इस इवेंट को बार बार सेकुलर से सेकुलर बनाने की कोशिश की जाती है। इससे पहले भी हमने इसी तरीके के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस किया है। आज का टॉपिक था नहजुल बलागा और इस्लाह माशरा, या अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ तो नहजुल बलागा एंड सोशल रिफॉर्म्स। चूँकि हमारे अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ खुद ब खुद पैदा होती जा रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत थी कि एक हॉल्ट लेकर नहजुल बलागा के ज़रिए मौलाए कायनात की ज़िंदगी को सामने रखकर किस तरीके से हम सोशल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। हमको बड़ी खुशी हुई कि आज के इस सेमिनार में, इस इवेंट में काबिल ज़िक्र स्पीकर जनाब प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद, जो अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, मोहतरमा सारा मैथ्यूज़ जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आगा मुजाहिद जो एक मजहबी शख्सियत के तौर पर पेश किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ अफकार के लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म में जमा किया और हमारी दानिश में ये इवेंट, ये सेमिनार बहुत ही कामयाब रहा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इसी तरीके के प्रोग्राम्स को हम आपके सामने बार बार पेश करते रहें। ये जो आज कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई नहजुल बलागा सोसाइटी की तरफ से इस्लाह मुआशरा, मेरा बस मेरी बुनियादी और दसबस्ता गुजारिश ये है कि किसी भी मुआशरे में इस्लाह जो है वो अपने नफ्स की इस्लाह से ही शुरू होती है। ये एक इनफरादी ज़िम्मेदारी है। हुजूर की हदीस शरीफ है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बुह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना या जाना, उसने अपने खुदा को पहचाना। तो नफ्स पर काबू करना और उसको तमाम जो हमले उस पर हो रहे हैं उससे बचाना, वही एक रास्ता है जिससे इस्लाह मुआशरे का सिलसिला जारी होता है। और बेहतरीन तरीक़ा यही है कि कुरान तो कुरान है, वो कलामुल्लाह है, लेकिन अक्सर कलामुल्लाह जो है उसके लिए किसी मुफस्सिर की या किसी उस्ताद की या मुज्तहिद की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो अहम रहनुमाई अमली तौर पर कुरान के पैगाम पर, ख़ासकर अदल के पैगाम पर अमली जामा जो है नहजुल बलागा पहनाता है। और इमाम अली के अक़वाल अलैहिस्सलाम के अक़वाल जो हैं, जो बहुत ही शुस्ता, शाइस्ता, फसीह ज़बान में, जिसकी तारीफ़ लेबनानी ईसाई जॉर्ज दाग तक ने की और लोगों ने की, वो हम तक के पहुँची है। और अगर हमारे नौजवान बिला इस्तिस्ना मज़हब व मिल्लत नहजुल बलागा को पढ़ें और फ़ातसमू की जो सदा है कुरान में उसको याद रखें, तो वो यकीनन हम इस्लाह मुआशरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बलागा और सोशल रिफॉर्म के बारे में तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी सोशल रिफॉर्म है, अगर आप नहजुल बलागा जो भी हज़रत अली का देखें तो हाउ डिड ही ट्रीट वुमेन, सबको इक्वल बनाए, करेक्ट। सो उन्होंने सबको इक्वल ट्रीट करे। और अगर हमें सोशल रिफॉर्म करना है, होना चाहिए, अगर हम कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो ख़वातीन की ज़रूरत है वहाँ पे, उन लोगों को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ओके। और ये भी है कि जो भी सोशल रिफॉर्म के इनिशिएटिव्स लेंगे उनके खिलाफ बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि ये सियासत का मामला है, पावर का मामला है, तो लोग ऑब्जेक्ट अपोज करेंगे आप हमेशा। बट आप जो मकसद से काम कर रहे हैं उस पर टिके रहिए। और सो इन एनी सोशल रिफॉर्म, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन ज़रूरी है। और सोशल रिफॉर्म करने के पहले लोगों को अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, कम्युनिटी में क्यों ज़रूरी है, ये भी करना चाहिए। एनीथिंग एल्स?
इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।